what we discussed in the last class. What is the last topic that we discussed? The last Topic. topic that we discussed was key principles of effective business communication. Okay, and the Yes, sir. points were like clarity and consciousness, audience awareness, active listening, tone Mhm. appropriateness, and feedback. And today we'll start with importance of business communication. So why business communication is so much important in today's business like scenario? Anyone? Tell me. I'm asking Um, something. Yes. mhm. Why do you think that business communication is so much important in corporate world in today's scenario? सर, बिजनेस कम्युनिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे कॉरपोरेट या फिर जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं। Hmm. इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होता है, डिसीजन मेकिंग हम लोग कर सकते हैं, Hmm. एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं सर, Hmm. एक अपने Okay. आप को बूस्ट कर सकते हैं। Okay. So can you read this one? Importance of business communication. So ओके। basically, why it is important? The point number one is it improves decision making. See, effective communication. If you are having effective communication, if you communicate effectively, if you हेलो सर। done. Otherwise, it will be broken. Hello. Yes. Okay. I don't know why it is happening. Okay. Now it is clear. Hello. यस सर। यस सर। Acha. So you just yes. So it improves decision making. Clear communication ensures that all team members have the necessary information to make informed decisions. Let us say, and let us start with an example. With I mean, take example from our school days. Okay, let us say you are a monitor of a class, right? And some important announcement has to be made inside the class, right? तो आपको जो अनाउंसमेंट जो नोटिस जो भी चीज बताया गया है उसको उसी हिसाब से पढ़ के आप बताइएगा सभी को, तभी वो सब तक पहुंचेगा। नहीं अगर उसमें से आपने कुछ सेंटेंस को छोड़ दिया, इनकम्प्लीट रूप में बताया या कुछ अपने से उसमें जोड़ दिया, तो क्या ये सही कम्युनिकेशन होगा अभिजीत? नहीं होगा। तो उसी नो तरह सर। से बिजनेस में भी क्या है कि आपका मान लीजिए जो भी एमडी से कुछ लेटर आना है या कुछ कम्युनिकेशन करना है या जनरल मैनेजर से है या मैनेजर से कुछ सबॉर्डिनेट को कुछ कम्युनिकेशन भेजना है कि आपको ये काम करना है या ये प्रोडक्ट पे टारगेट करना है इस मंथ में ज्यादा सेल करने के लिए, या कोई पर्टिकुलर कंपनी से टाई अप हुआ है उसका क्रॉस सेलिंग करना है, इफ यू आर वर्किंग इन अ बैंक and you are into the vertical of distribution channel, wealth management distribution, and let us say your bank has got a tie up with Bajaj Allianz Life Insurance Company. For this month if you sell a certain number of policies of that company, then the company may give you a very big party or may sponsor you for any also.
So this kind of thing may be given. जो बजाज अलियंज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से जो कम्युनिकेशन ब्रांच मैनेजर या जनरल मैनेजर या जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का जो मैनेजर है बैंक का उसके पास आया है, that message or that information or that email, that information has to be understood in the same sense, in the same way. It should not be diverted in any manner. Are you getting my point, Mr. Abhijit? Hello? Sir, please can you repeat? Huh? Sir, please repeat, sir, one more time. आपने सुना नहीं या समझा नहीं? सर हम समझे नहीं. समझे नहीं. Sunrise, you have understood or what? Yes, sir. Have you understood? Yes, sir. What have you understood? Just explain. सर फिर से बता दीजिए थोड़ा. So this is what you have सर आपका understood. वॉइस ना क्लियर नहीं आ रहा था, बीच में थोड़ा सा अटक गया था. अभी आ रही है आवाज ठीक से? हाँ. मैंने कहा कि let us say you both of you or all of you whosoever are doing pursuing their MBA course, after completion of MBA you have joined a particular bank, okay, as an employee. Are you getting my point? Yes, sir. And that also into the wealth management section. Do you know wealth management? No. Okay, let us say that you have joined into the wealth management vertical of the bank. And for this month, let us say for the month of December or maybe for the month of January or maybe for the JFM, January, February and March quarter ending, year ending quarter, your bank has got a very good strong tie-up with any XYZ insurance company, life insurance company, and your bank has got a from their own side, they have committed to the insurance company that our employees or our bank or we would be in a position to sell such and such number of policies of your company in this month. We would be selling this much of policies of your company for this month, and that target the bank has taken. So what the bank would do, bank would offload that target, distribute that target branch wise, maybe RM wise, relationship manager wise, maybe wealth manager wise, that they would do. So what my point was, अगर मान लीजिए क्या है इफेक्टिव अगर जो इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर ने आपके बैंक को जो कम्युनिकेशन दिया है, so that communication has to be understood by the bankers in the same sense, in the same meaning, and to that extent only. Is it clear or not? नो सर, थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए ना इसको. अरे मैडम हिंदी में बताता हूँ, डिटेल्स में ही मैंने हाँ, ठीक समझाया, है. सुन लीजिए. अब क्या है, ये क्लास है आपको बिजनेस कम्युनिकेशन का, और मैं हिंदी में बताऊं तो ये मुझे थोड़ा सा Yes, वो sir. लगता है, इसलिए मैंने इंग्लिश में दो बार कोशिश किया, लेकिन आप बता रही हैं कि सर आप डिटेल्स में समझाइए. मैंने दोनों बार बहुत डिटेल्स में समझाया. एनीवे, ओके सर. क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, मैं जो कह रहा हूं उस बात को आप उसी सेंस में समझिए और उतना ही समझिए, उससे ना कम समझिए ना उससे ज्यादा समझिए. आई बात समझ में? यस सर. मान लीजिए आप कहीं बैंक में काम करते हैं और आपको बैंक वाले ने, मैनेजर ने बोला है कि आज के दिन में तुम 10 अकाउंट खोलो. ठीक है, तो 10 अकाउंट खोलो, ऐसा टारगेट है आज का एक दिन का. तो आपको 10 अकाउंट खोलो, एक लाइफ इंश्योरेंस बेचो, 5 म्यूचुअल फंड बेचो, एक एफडी अकाउंट खोलो, ये कहा गया है. तो आपको ये बात, अपने टारगेट का ये जो बात है, ये आपको लिख लेना है. तो मतलब जो कहा गया है मैनेजर के तरफ से, वही बात और उतना ही समझना है, उसमें अपना दिमाग
नहीं नहीं लगाना है। तो खटाना है। तो अच्छा यही बोल रहा है कि improves decision making, clear communication ensures that all team members have the necessary information to make informed decisions. Informed decisions मतलब इंफॉर्मेशन पहले से ही मिल चुका है कि क्या करना है, लाइफ इंश्योरेंस कितना करना है, एफडी अकाउंट कितना खोलना है, करंट अकाउंट कितना, ये पहले से ही एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस है, ताकि सब चीज पर आप बराबर उस ये जो दिशा निर्देश है उस हिसाब से आप ध्यान दीजिएगा। अब क्लियर हुआ कि नहीं सर अभिजीत? यस सर। क्लियर हो गया? अब क्या हम्म है, नेक्स्ट है प्रमोट्स एफिशिएंसी। सो प्रॉपर कम्युनिकेशन मिनिमाइजेस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड एरर्स, इंप्रूव्स एंड इट आल्सो इंप्रूव्स, चला गया, just a minute, my laptop is just switched off, 1 minute, some tech, yes. So errors, improving productivity, जब आप एफिशिएंटली काम करते हैं, लेट अस से आप मान लीजिए कि गर्मी का मौसम है, ठीक है अभिजीत? यस सर। गर्मी का मौसम है और आप बही खाता मेंटेन करते हैं किसी कंपनी में, ठीक है, और आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि ऑफिस में पंखा खराब है, ठीक है, आपको काम तो करना है, यस सर। काम तो करना है, तो आप काम कर रहे हैं ऑफिस में, लेकिन पसीना भी आ रहा है, गर्मी भी खूब है, 45 डिग्री है टेम्परेचर, हाँ, पानी भी ठंडा नहीं है, आप तब जो काम करेंगे, और मान लीजिए कि ऑफिस में एसी लग जाए, फ्रिज भी आ जाए, पानी भी ठंडा मिले, तब जो काम करेंगे, तो दोनों काम में अंतर रहेगा? नो सर, सर काम तो हमें सर वही करना है, उतना ही करना है। हम्म। हाँ, एक है रिलैक्सेशन, थोड़ा सा हम लोग मुझे मिल सकता है। काम उतना ही करना है, तो लेकिन सेकंड केस में क्या होगा, आपका चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा, एफिशिएंसी, आप ज्यादा काम कर पाएंगे। मान लीजिए यस सर। बही खाता में अगर आप 10 पेज लिखते हैं, तो आप हो सकता है कि 13 पेज लिख पाएंगे, 14 पेज लिख देंगे, क्योंकि एसी का हवा चल रहा है, पानी भी यस ठंडा सर, मिल रहा है, माइंड रिलैक्स रहेगा सर। गलती भी एक कम होगा, ठीक है, एरर्स भी कम होगा, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। सो enhancing in productivity is called what, that is known basically the efficiency, understood? So to make you understand the word efficiency, I just gave this example. Now next is what builds relationship. So regular and open communication helps build trust and collaboration among employees, managers and clients. Now you read Abhijit, boost morale. बूस्ट मॉडल, Yes, चौथा पॉइंट से ट्रांसपेरेंट पढ़ो। communications Hmm. ensures employee feel heard and valued, leading to higher job satisfaction. It's not heard, it's heard. Heard Heard. माना सुनना. Yes. Okay. Hear, heard. Okay. Now next point you read sunrise. yes sir. Enhance brand image, positive internal communication, External madam. external communication builds a good Builds a good reputation with customers and other stockholders. stakeholders. Stakeholders. Yes. Next topic also you read nature and importance. Nature and importance. Next page please, page number 4, last paragraph. Please turn down the page, please scroll down. Yes, nature, yes, that's it. You read. Nature of business communication. Business communication involves the exchange of information and ideas within and outside an organization to achieve organizational goals.
It can be formal or informal, internal or external, and uses different channels and methods depending on the context. Below are the key characteristics that define the nature of business communication. So business communication basically involves the exchange of information. Communication मतलब exchange of information. कुछ अपनी बात कहिए, आपके पास जो information है, कुछ हमारी बातों को सुनिए जो हमारे पास information है. Ideas within and outside an organization. Organization में के अंदर में and उसके बाहर में to achieve organizational goals. Organization का जो goals है उसको achieve करने के लिए. एंड अभी क्या है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. फर्स्ट वन इज पर्पस ओरिएंटेड. सो द प्राइमरी पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. सबसे पहला तो यह है कि वह ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है. आप किसी कंपनी में काम करेंगे, मार्केटिंग. सो इन विच डिपार्टमेंट डू यू विश टू वर्क, मैम? यू टेल मी. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर दिस कोर्स MBA, Yes, sir. in which specialization you want to work, or you want to do your MBA? Sir, HR, HR. So in which department you would prefer to work? management, मतलब किस डिपार्टमेंट मतलब काम team- करना चाहें? डिपार्टमेंट मतलब मैनेजर वगैरह. मैंने एकदम डायरेक्ट मैनेजर का डेजिग्नेशन में लैंड कर जाना है डायरेक्ट, है ना? उसके बीच में कुछ नहीं, डायरेक्ट मैनेजर. चलो, अब जो आया सब मेरे अंदर में काम करो, हम तो मैनेजर हैं भाई. चलो. हाँ. अच्छा. तो ये बताइए. So purpose oriented. The primary purpose of business communication is to achieve organizational goal, whether it's to inform, persuade, or collaborate. The communication process is directed toward a specific objective, such as so as far as your knowledge goes, you just tell me that I mean what might be the roles and responsibilities of the HR. आप HR में जाएंगे, मैनेजर बनेंगे, जी सर. और HR में जाएंगे. HR मैनेजर ना, कि कौन सा जी मैनेजर सर. आप? हाँ जी सर, HR मैनेजर. तो अब ये बताइए मैम कि HR मैनेजर बनिएगा तो HR मैनेजर में क्या कीजिएगा आप बन के? हम काम देंगे लोगों को, टीम वर्क करेंगे, मीटिंग रखेंगे, टीम को और लीड करेंगे. वाह, और आप बैठ के देखते रहिएगा, ये सब है ना, ये सब पूरा काम दे दो सबको, आप बैठ के देखते. तो बहुत बढ़िया है भाई. एनीवे, सो तो इसमें क्या है कि सर कुछ गलत बोल दिए क्या? नहीं, आप लोग गलत कैसे बोलिएगा भाई? आप लोग एकदम डायरेक्ट मैनेजर बन के अब पूरा काम करवा देना है सबसे. हाँ सर. काम करना पड़ता है मैम. ऐसा काम करवाने के लिए खुद पहले करना पड़ता है, सीखना पड़ता है. काम करवाना ऐसा कुछ नहीं है, साथ में काम करना पड़ता है. तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होगा उसको काम करेंगे. क्या HR में क्या कीजिएगा, लोगों को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिएगा, लोगों का परफॉर्मेंस देखिएगा, सैलरी वगैरह डिस्कस कीजिएगा, सैलरी बढ़ाइएगा, सैलरी स्लिप बनाइएगा, ये सब है काम. उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल काम हो वो देखिएगा. ये सब बहुत सारा काम है मैम. रिक्रूटमेंट का काम है, लोगों को लाना होगा, आपको इंटरव्यू लेना होगा. ओके. कोई हटेंगे तो उसका PF वगैरह ये सब सारा सेटलमेंट देना होगा. बहुत सारा काम है, एक काम थोड़ी है. जी सर. तो वही मैं कह रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस ओरिएंटेड, ऑर्गेनाइजेशनल का जो गोल है उसको अचीव करने में HR नहीं, मैंने जो पर्पस ओरिएंटेड होना चाहिए. बिजनेस कम्युनिकेशन जो भी है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पर्पस ओरिएंटेड आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए. नेक्स्ट इज व्हाट? कंटिन्यूअस प्रोसेस. सो बिजनेस कम्युनिकेशन इज ongoing and occurs at every level of the organization, from internal communication between departments to external communication with customers. Business communication is continuous flow of information that ensures the smooth operation of the business. जो customers हैं आपके, उनके साथ भी आपको संवाद स्थापित करना होगा
क्योंकि कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका बिजनेस डूब जाएगा, मार्केट डाउन हो जाएगा, सेल्स डाउन हो जाएगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा और अंततः आपका सैलरी में भी कट हो जाएगा। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वेरी very much important, and to satisfy the customer there should be a continuous flow of conversation, okay, communication, and that effective communication. आप लोगों को पता होगा कि मैगी जो हम लोग खाते हैं नूडल्स, उसमें एक बार आया था कि उसमें शीशा है, बहुत ज्यादा शीशा। हाँ, यस सर। आपने सुना था अभिजीत? सर कीड़ा नहीं है सुना? ये सुने थे। कीड़ा? कीड़ा नहीं, हमने 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 तो सुना था कि शीशा, शीशा जो होता है। हम तो ले सर नूडल्स खाते नहीं है, नहीं खाते नहीं है तो सुने इसका भी नहीं मतलब है। हाँ, सुने भी नहीं है सर। नहीं तो आपको सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा ये सब न्यूज क्या है, कि बिजनेस से रिलेटेड न्यूज है ना। यस और सर। ऐसा ऐसा है कि नूडल्स आप नहीं खाते हो भले, लेकिन जो है वो उसका मार्केट शेयर हर जगह अगर आपको मिल जाए, मैगी कंपनी में काम तो नहीं कीजिएगा? सर डेफिनेटली करेंगे। मेरे खाने ना खाने कंपनी में काम करने से उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सब न्यूज बिजनेस रिलेटेड न्यूज है तो आपको जानना चाहिए। ये सर मुझे जान के रखना चाहिए था। हाँ, तो नहीं ओके जान सर। के रखना चाहिए, लेकिन मैंने आप अवेयर रहिए ये सब चीज से। तो वही मैं ओके कह रहा सर। था कि अभी क्या है कि ये प्रॉब्लम आ गया कि उसमें शीशा है, तो लोगों ने खाना बंद कर दिया, क्योंकि वो हेल्थ पे असर पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत ज्यादा उसका सेल्स डाउन हो गया। फिर फिर कंपनी को बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट डालना पड़ा न्यूज़पेपर में, टीवी में, रेडियो में, ये सब में, कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, या कम मात्रा में है, या ऐसा कुछ एक बैच में था, सारा में नहीं है। तो ऐसे करके लोगों का कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है कि नहीं, ये मतलब ये उतना हानिकारक नहीं है, तब जाकर के उसका सेल्स बूस्ट अप हुआ, अदरवाइज सेल्स जो है डाउन हो गया था बहुत। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो कोई एक आपका इमेज जो बन जाता है ना, उसको इमेज को फिर ठीक करने में बहुत समय लगता है। नाउ यू रीड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, अभिजीत। one more gentleman is there, just wait. You read Sharan, what is his name? एक और है ना, क्या नाम बताया था उसने, भूल अमलेंदु। गया। अमलेंदु जी बताइए, आप यू रीड अमलेंदु। हेलो, अमलेंदु मिश्रा ऐसे कुछ नाम है। मिस्टर अमलेंदु, जस्ट रीड। ओके, यू रीड अभिजीत। Formal and informal business communications can be both formal, official channels like meeting, emails, report, etc., and informal, casual conversations, instant messaging, both from the essential for achieving business outcomes. Third, formal communication is often often prepared prepared for official documentations. ठीक है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में हो गया, आपको मीटिंग हो गया, ईमेल्स के थ्रू आप डाल रहे हैं, या वन पेजर जो आता है इंफॉर्मेशन, वन पेजर इंफॉर्मेशन, कुछ आपको प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, या कोई कॉलेज के बारे में, इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के बारे में, एक पेज का इंफॉर्मेशन देखा है आप लोगों ने, पंपलेट, वो हो गया। ये सर पैम्पलेट सर, देखा है? होर्डिंग्स वगैरह। तो हो गया फॉर्मल। इनफॉर्मल हो गया कैजुअल कन्वर्सेशन, जैसे लोग बात करते हैं, चाय पीते समय बात करते हैं, या आपस में व्हाट्सएप चैट वगैरह करते हैं, कुछ यस मुद्दा, सर। that is. Then multi-dimensional business communication occurs in different directions such as upward, downward, and horizontal. So upward communication involves employees sharing information with managers. जब employees कम्युनिकेशन को मैनेजर्स के साथ शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है? इट इन्वॉल्व्स मैनेजर्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस और फीडबैक टू एम्प्लॉइज। तो जब मैनेजर्स
कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं एम्प्लॉय को तो दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड। एंड हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, अमंग पियर्स और कलीग्स एट द सेम लेवल, सेम लेवल पे बात हो रही है तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। वर्बल एंड नॉन वर्बल, पेज नंबर 6। Okay, so it includes both verbal and non-verbal communication. And non-verbal communication includes your body language, your facial expressions, tone of voice, etc. So both plays a crucial role in ensuring the message is clearly understood and appropriately received. Now read uh, this Yes, feedback. sir. Read, yes. Feedback driven and driven. 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 Feedback is an क्या Essential. essential component of business communication. It ensures that the message has been understood as inter, intended है क्या वही है। intended and provides an opportunity for further clarification or adjustment. तो इसका क्या मतलब हुआ मैम, जरा बताइए। ओ बाप ओ बाप रे। रे, हम तो पढ़ते गए, हम तो बताइए पढ़ बताइए। लिए। अरे आपने पढ़ा है तो बताइए इसका क्या हुआ मीनिंग, जनता जरा समझे भी कि क्या लिखा है। ओके, हम पहले खुद समझ आते उसके बाद बताते हैं। हम्म, नहीं बताइएगा। सर बता दीजिए आप थोड़ा। देखिए फीडबैक ड्रिवन, फीडबैक मतलब क्या होता है कि आपने जो काम किया, आप जो कि पढ़ाई कर रही है हाँ मान लीजिए, हाँ तो आप जो कर रही है, तो आप जैसे मान लीजिए घर में खाना बनाती है, किसी को देती है खाना, हम्म तो पूछती है ना कि भाई कैसा हाँ बना खाना, कैसा बना, हाँ वो होता अच्छा फीडबैक। बना, टेस्टी था, नहीं टेस्टी था, जल गया, नमक ज्यादा था। तो वैसे ही काम करते हैं हम लोग, तो उसका फीडबैक लेते हैं। तो फीडबैक इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। आप मतलब जो फीडबैक आपने जो काम किया है, जो भी हुआ ऑर्गेनाइज, उसका फीडबैक आना चाहिए कि भाई जी इसमें सर। क्या कमी रह गया, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो फीडबैक से ही आएगा। इट इंश्योर्स दैट मैसेज हैज बीन अंडरस्टूड as intended and provides an opportunity for further clarification or adjustment। तो ये बताता है कि जिस हिसाब से बताया गया था चीज, या इट इंश्योर्स दैट द मैसेज हैज बीन अंडरस्टूड, जो मैसेज देने का कोशिश किया गया था, जो बताने का कोशिश किया, उसको उसी सेंस में समझा गया, उसी कॉन्टेक्स्ट में समझा गया। आपको जैसे मैं बोल रहा हूं कि अंग्रेजी इंप्रूव कीजिए, तो आप इसी कॉन्टेक्स्ट में इस बात को समझिए। ये मत समझिए कि सर अंग्रेजी बोल रहे हैं इंप्रूव करने हैं, तो आप जो है हिस्ट्री इंप्रूव करने लग गए, ऐसा नहीं है। हाँ तो उसी उसी सेंस में उसको समझिए, यही बात कह रहा है। नेक्स्ट पढ़िए, गोल गोल सेंटर्ड। goal centered. Every piece of communication, whether written, spoken, or non-verbal, is aimed एम्ड, aimed at achieving a specific goal. specific Such goals such as specific solving a problem, creating creating awareness, awareness. or enhancing collaboration. So what do you mean by awareness? You must be knowing जागरूक awareness. जागरूक जागरूक करना सर। हम्म, ठीक है, ये तो हो गया अवेयरनेस, जागरूक रहना। और एक आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों के गेट पर लिखा, क्या लिखा रहता है, और उसके आप बी फोटो भी अवेयर, बना रहे, बी लिखा रहता है अवेयर। मैम, No parking. नो पार्किंग। नहीं नहीं, वो जो बताया अभिजीत, डॉग। हम तो ज्यादातर यही देखे हैं, नो अच्छा पार्किंग चल, का साइन लगा रहता है। ठीक है, एक बार जरा घूम के देखिए, वो भी मिल जाएगा आपको, वो जो बता रहा, बिवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। तो एक है अवेयरनेस मतलब जागरूक, क्वेश्चंस। और एक है कि मतलब सावधान। So importance of business communication now. Effective business communication is crucial for the success and growth of an organization. देखिए भाई, इफेक्टिव, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं, सर वॉइस नहीं आ रहा आपका। यस सर।
शरीर में भी नेटवर्क इशू अच्छे। कि आप ये कर रहे हैं, ऐसा टैलेंट को छुपा के रखने या अपने प्रोडक्ट के बारे में सर सर सोचेगा सर कि आप फिर से बताइए, आपका आवाज नहीं आ रहा सर। ऐसा शुरू से क्यों हो बताइए रहा सर। है। एक मिनट। ऐसा क्यों हो रहा है कि आवाज नहीं आ रहा बार बार? आज मेरा यहाँ से तो पूरा ताकत से बोल। अब आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि आज का जो युग और आज का जो जमाना है, मॉडर्न जमाना, ये है कि अपनी बात, आपका चीज खुद खुद से अपने आप वो नहीं सर फिर से नहीं आ रहा। बारे में लोगों को बताइएगा नहीं। तो और होटल में खाना, रेस्टोरेंट में खाना बन रहा है आपके यहाँ, स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाना, लेकिन जब तक आप बताइएगा नहीं लोगों को, बताइएगा मतलब रोड पे खड़े होकर नहीं बताना है, प्रचार प्रसार नहीं कीजिएगा इफेक्टिव तरीके से, तब तक वो नहीं फैलेगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज क्रूशियल फॉर द सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ any organization. Understood? So it has a significant impact on various aspects of business functioning. Now, here are some key reasons why business communication is important. So, it facilitates decision making. So, why it is important? It is important because it facilitates decision making. So, clear and accurate communication is essential for managers and employees to make informed decisions. Timely information, feedback, and analysis ensures that decisions are based on facts and data rather than assumptions, leading to better customer outcomes. आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप जो डिसीजन लेते हैं ना, जब पब्लिक में आप कुछ बताते हैं या कुछ भी डिसीजन लेते हैं, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे लेते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा रेस्टोरेंट का एग्जांपल देते हैं। आज मान लीजिए कि सपोज संडे है, ठीक है, और कुछ ऐसा छुट्टी का दिन चल रहा है, मतलब संडे भी है, और ऐसा है कि बच्चे लोग भी सब ऐसा मतलब एंजॉय करने का मूड, कुछ ऐसा फेस्टिवल है, ठीक है। तो आपके जो आपका जो रेस्टोरेंट है उसमें खाने वाले लोगों का भीड़ ज्यादा जुटने का संभावना है। तो आप जो इन्फॉर्म डिसीजन, मान लीजिए कितना कुछ ऐसा कुछ आइटम बनाना है शाम के टाइम में, चिकन का कोई आइटम बनाना है या कुछ मान लीजिए वेज ही बनाना है, तो आपका जो रसोइया है उतना कैसे बना, उतना कैसे बनाएगा जब तक उसके पास इन्फॉर्म डिसीजन नहीं होगा कि हमारे पास इतना राशन है या इतना सामान है या इतना तेल है या इतना आटा है, और तो ये क्या हो गया, डेटा हो गया, इतना क्वांटिटी में है और इतने लोग एक्सपेक्टेड है आने वाले हैं, तो ये क्या हुआ। तो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस जो है, एक्यूरेट डिसीजंस तभी ले पाएगा जब एक्यूरेट एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके पास डेटा रहेगा। तो वही कह रहा है, तो इट फैसिलिटेट्स डिसीजन। आ रहा है समझ में बात? जी सर। नेक्स्ट है promotes efficiency and productivity. What do you mean by productivity, ma'am? You tell me. प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्ट है ना? हाँ। अच्छा, और एफिशिएंसी मतलब? You tell me, Abhijit. You explain. हेलो हेलो। सर हम बोल रहे थे, मेरा म्यूट हो गया था सर, म्यूट था। ओके ओके। प्रोडक्टिविटी मतलब सर उत्पाद, मतलब उत्पादन करना। हम कोई चीज का कैसे बताएंगे उसको? सामान। नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्टिविटी उसको मेकिंग मेकिंग सर, उत्पाद करना सर। मैन्युफैक्चरिंग? यस सर। नहीं भाई, क्या आप लोग कुछ कुछ ही बता देते। देखिए, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि कितना कोई भी अपना, जैसे मान लीजिए कि आप 8 घंटे का आपका क्या, 8 घंटे आप ऑफिस में गए,
ठीक है, 8 घंटा काम करना है। आजकल तो 8 घंटा नहीं होता है, 14-15 घंटा हो जाता है, 12 घंटा हो जाता है। तो 8 घंटे में आपका प्रोडक्ट, आप 8 घंटा काम करना है, 2 घंटा आप गप लड़ाए। ठीक है, आप अभी मैं बता रहा हूँ, 2 घंटा गप लड़ाए, 1 घंटा में चाय पिए, कुछ इधर उधर घूमे, पान भी खाए। ठीक है, चाय पिए, पान खाए, 1 घंटा गप लड़ाए, और 2 घंटा गप लड़ाए, 1 घंटा में इधर उधर टहले, तो 3 घंटा हो गया। 8 में से 3 निकल गया, कितना हुआ? 5 घंटा। उसमें से आधा घंटा लंच कर लिए, ठीक है, और आधा घंटा पेपर पढ़ लिए, तो कितना? 4 घंटा निकल गया। अब इधर बटा बचा 4 घंटा। तो आपने प्रोडक्टिव काम कितना किया कंपनी के लिए? 4 घंटे ही आपने खटा कंपनी के लिए। यू हैव वर्क ओनली फॉर 4 आवर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एंड यू हैव वेस्टेड 4 आवर्स ऑफ द कंपनी बाय डूइंग व्हाट? बाय डूइंग नथिंग। डिड यू गेट माय पॉइंट? Am I audible? Hello? Am I audible to Yes. anybody? Yes, sir. So, Yes, so sir. did Yes, you? It doesn't mean productivity doesn't mean your product or manufacturing. No, productivity means the the hours utilized by you, and you have utilized it by giving some positive result, not wasting, or not any any kind of wastage kind of things. आपको दिया पढ़ने के लिए कि भाई ये तुम 2 घंटा पढ़ो, मम्मी बोली कि चलो मैं बैठी हूँ, मैंने तुमको दिया ये टास्क पढ़ो। आप 2 घंटा में क्या किए? किताब लेके बैठ गए। आधा घंटा आप किताब के पास ऐसे देख रहे हैं, एक ही पेज में ऐसे बैठे हैं, देख रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है, सोच रहे हैं कुछ और, किताब तो सामने में है। ऐसा होता है ना? तो दैट इज अनप्रोडक्टिव। और अगर मैंने 2 घंटे में 1 घंटा मैंने पढ़ा, एकदम बढ़िया से याद किया, दैट 1 hour इज माई प्रोडक्टिव आवर, एंड दैट 1 hour दैट आई हैव वेस्टेड, I spent my time, but in an unproductive manner. It didn't, it was not fruitful. It was just waste. Now you have understood or not? Have you understood? yes, sir. आया समझ में मैम? Yes, sir. हाँ आ गया। ऐसा होता है ना? जी सर। तो फिर तो वही है प्रोडक्टिविटी और अनप्रोडक्टिविटी। सो वेल स्ट्रक्चर्ड कम, आप लोग ना अंग्रेजी इंग्लिश का पेपर आता है, उसको पढ़िए, समझिए, डिक्शनरी फॉलो कीजिए, इंग्लिश न्यूज देखिए, ये सब काम कीजिए। ओके? ओके सर। and for you it is very important to pronounce correctly also, ओके सर। if you want to improve. Okay, so well structured communication system reduce misunderstanding, confusion and errors. When everyone is on the same page, tasks are completed more effectively, deadlines are met, and productivity increases. Proper communication enables teams to align their goals and collaborate efficiently. What they're saying that if everybody is doing their own work, like घर में एक छोटा सा, let me give you the example of a household example. Your mother gets up early in the morning at 5 o'clock, and you, being a responsible student, also get up, at 5:30 or 6 o'clock. Okay, your father goes duty by 8 o'clock. Okay, so all the household work, if you help your mother in cooking, or maybe in cleaning your house, then her burden will reduce, and at the same time her productivity will increase. अगर आप हर आदमी अपना अपना जिम्मेदारी से काम करे, अपना अपना काम करे, दूसरे को भी हेल्प करे, तो जो ऑर्गेनाइजेशन को आप ऐसा समझिए कि घर से ही एग्जाम्पल लेते हैं। आपको मम्मी अगर 5 बजे उठती है, तो आप भी अगर 6 बजे उठ जाते हैं, मम्मी को थोड़ा हेल्प कीजिए, मदर को कुकिंग में भी कुछ हल्का फुल्का भी कीजिए, अपना पढ़ाई भी कर लीजिए, तो आपको नहीं लगता कि मैम की काम आसान हो जाएगा? यस सर। या आपको जो काम दिया गया कि बेटा सब्जी बना लो, तो सब्जी बना लिया, या घर में सफाई कर लो तो सफाई कर लिया, तो इससे मम्मी का काम आसान होगा कि नहीं?
जी सर। और मम्मी ने कहा कि कर लेना वाला काम, और आपने क्या किया, आराम से सो गए, तो मम्मी का काम उतना का उतना ही रह गया। तो वही कहा जा रहा है, सो प्रमोट्स efficiency and productivity. Our next point is builds strong relationships. So, open, transparent, and empathetic communication builds trust and rapport among employees, managers, and clients. जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं ना, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन मतलब कुछ छुपा के नहीं, कुछ उलझा के नहीं, कुछ अच्छे से जो भी बात है उसको वैसे ही कह देना, एकदम पूरा क्लियर सेंस में। तो क्या होता है, सब में ट्रस्ट भी बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, घर में भी तो होता है, अड़ोस पड़ोस में दोस्तों के साथ भी होता है। कुछ छिपा के करने से तो ऐसा नहीं होता है, सब ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉस्टर्स पॉजिटिव रिलेशनशिप, ensuring long term relationships and a supportive work environment. Now you read, ma'am, point number 4. यस सर। You read. Enhance employee morale when employees feel that देखिए, they एक are मिनट, एक मिनट, मोरल मत पढ़िए, इसको पढ़िए मोरल। morale. यस, रीड। Okay. They are informed and that their opinion are valued. It boosts their morale and job certification. Good communication in सेटिस्फैक्शन। satisfaction दिखता नहीं। Good ओके, communication ensure that employee understand their roles, the company's goals, and their contribution to this goal. so what does it mean by this? What does it mean by this? यस सर, बता रहे हैं। When employees feel that they are that they are informed and their opinions are valued, it boosts their morale and job satisfaction. Good communication ensure that employees understand their roles, the company's goals, and their contribution to those goals. जब एम्प्लॉयज को ये लगे कि भाई मेरा हमने जो काम किया उसको वैल्यू किया जा रहा है, उसका इम्पोर्टेंस है, लोगों की नजर में उस काम का वैल्यू है, और साथ ही साथ जो कहा जा रहा है, गुड कम्युनिकेशन इंश्योर्स दैट एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड देयर रोल्स। हर व्यक्ति, किसी को ये नहीं कहना कि वो नहीं किया तो मैंने नहीं किया, ये नहीं किया तो, ऐसा नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन में मैम। हर व्यक्ति का अपना रोल डिफाइंड है, और अपना रोल को आपको स्वयं करना होता है। घर में आप बहानाबाजी कर सकते हैं, परंतु ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर पाइएगा। सो द कंपनीज द ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू दोज। और हर आदमी अगर कंट्रीब्यूट करेगा, अपना अपना पार्ट करेगा, अपना अपना काम का भाग कर लेगा, तो अल्टीमेटली ये कंट्रीब्यूशन हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में। improves customer relationships. So clear communications with customers helps in understanding their needs, addressing concerns, and ensuring satisfaction. Effective communication channels such as customer support, social media, or surveys help businesses keep customers engaged and loyal. What do you mean by loyal? You tell me, ma'am. Bimlendu, you just tell me यस what is it? Bimlendu, na? Mr. Misra, just tell me what does it mean by this loyal in this context? I don't know. He's हम बताएं। not. Yes, you would tell, but he's not answering anything. Okay, you tell. तो वफादार मतलब काम को लेके वफादार। हाँ मतलब लॉयल का मतलब वफादार ही होता है बस। कोई भी जो वफादार है वो लॉयल हो गया, यही ना? हाँ। अच्छा, ठीक है, तो जो आप बोल रही वही हम मान लेते हैं, ठीक है।
चलिए, facilitates coordination in any organization. Employees work in teams and different departments interact. Good communication ensure that all team members are aware of their responsibilities and progress. It ensures that smooth coordination between departments, leading to a seamless workflow. देखिए, सब लोग अपना जिम्मेदारी से काम करेंगे, अपना जिम्मेदारी को समझेंगे, अपना काम को टाइम पर करेंगे, तो इससे क्या होगा? बहुत सारा ऐसा काम होता है ना कि एक डिपार्टमेंट में काम होता है तो फिर वो काम जाता है दूसरे डिपार्टमेंट में, फिर वहां पर तब वो काम होता है। मैंने हमने करके दिया, तब जाकर के दूसरा डिपार्टमेंट काम शुरू होगा और तब उस पर में वो काम पर में वो आगे का काम शुरू होगा। तो व्हाट दे आर सेइंग दैट इट एंश्योर्स स्मूथ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, तो डिपार्टमेंट्स के बीच में स्मूथ कोऑर्डिनेशन रहेगा, लीडिंग टू सीमलेस वर्क फ्लो, विदाउट एनी हिंड्रेंस, बिना कोई रुकावट के सीमलेस वर्क फ्लो रहेगा ये। Next is encourages innovation. So open communication allows for the free exchange of ideas, which is critical for innovation. When employees feels comfortable sharing ideas and feedback, businesses can improve products, processes, and services, contributing to growth and competitiveness. सो जब आपका एम्प्लॉय बढ़िया रहेगा, अच्छे से काम करेगा, सब कुछ टाइम पर होगा, तो कंपनी जो है ना वो क्या करेगी? अपना प्रोडक्ट को सोचेगी इंप्रूव करने के लिए, सर्विस को इंप्रूव करने के लिए, कुछ और को इंप्रूव करने के लिए ऐसा सोचेगी। लेकिन अगर एम्प्लॉय ही नहीं रहेगा एफिशिएंट और अनप्रोडक्टिव रहेगा तो कैसे हो पाएगा ये सब? सो अभिजीत, यू रीड हेल्प्स इन क्राइसिस मैनेजमेंट। Help in crisis management. First of all, you tell me what do you mean by crisis? Crisis means सर कम पड़ना सर, अकाल अकाल नहीं मतलब शॉर्टेज। पढ़िए। In Read. times, Yes. in times of crisis, such as financial issues, internal conflicts, or PR challenges, business communications is key. Clear, claim, and concise communications नो नो, can क्लियर, उसके बाद क्लेम नहीं है, उसको पढ़िए क्या है ठीक से। इट इज काम। calm, okay, calm, and concise communications can help resolve issue quickly. Mention public trust and guide the organization thought through times. सर देखिए, वो हाँ बोलिए। मेंशन होगा कि मेंटेन होगा? अरे वाह, एकदम मेंटेन होगा। वही आप देखिए कहाँ कौन गलत पढ़ रहा है, जरूर चेक कीजिए, बिल्कुल मेंटेन होगा। मेंटेन है, उसने पढ़ा था मेंशन, वही मैं देख रहा था कि कोई गौर कर रहा है कि नहीं। आपने गौर किया, बहुत अच्छा, ठीक है। सो नाउ जस्ट टेल मी मैम, व्हाट डू यू मीन बाय पीआर चैलेंजेस, सिंस यू हैव pointed out that it should be maintained, not mentioned. Now you tell me what do you mean by PR challenges? तो पीआर मतलब नहीं पता। Public relation. Yes. अच्छा, पब्लिक रिलेशन। अच्छा अच्छा। तो आप जो काम कीजिएगा एचआर में, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में पीआर भी एचआर के अंदर आता है मैम। अच्छा अच्छा, खाली मैनेजर बन के बैठ के बस देखना नहीं होता है, ये ठीक सब है चीज जानना होता है। तो ठीक है। पीआर, हाँ, पीआर पर्सनल रिलेशनशिप भी करना होगा आपको। देन व्हाट दे आर सेइंग, इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस सच एज फाइनेंशियल इश्यूज। देखिए क्राइसिस मतलब क्या होता है कि पैसे का क्राइसिस है, बोलता है अरे यार पैसे का दिक्कत है बहुत। दिक्कत, अच्छा। तो दिक्कत हो गया, यहाँ पे दिक्कत समझ लीजिए। दिक्कत मतलब मान लीजिए कि एम्प्लॉय को सैलरी देना है हाँ और पैसा है नहीं, तब क्या कीजिएगा एचआर मैडम? पैसा तो देना है एम्प्लॉय को, नहीं दीजिएगा तो छोड़ देगा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय छोड़ देगा तो कंपनी कैसे चलेगा? जी सर। तो क्या कीजिएगा? एचआर, एज एचआर यू जस्ट explain. Maybe in next class you explain, otherwise it will take a lot of time. Okay. So in times of crisis such as financial issue, जब फाइनेंशियल इश्यूज आता है कि पैसे कम है, एक तो होता है कि कम है या एक होता है कि नहीं है, तो आप कैसे मैनेज कीजिएगा? सो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, अब
कई कई बार होता है कि इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब मारपीट नहीं होता, बट झगड़ा होता है, मतलब जो ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपका विचार कुछ और है, किसी और का कुछ और है। और पीआर चैलेंजेस या किसी जो पर्सनल रिलेशनशिप है, ठीक है, उसमें अगर कुछ चैलेंज, कुछ दिक्कतें हैं, तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज की। तो उस टाइम में आपको ऐसा एज एचआर आपको ऐसा कम्युनिकेट करना होगा कि सब आपके बात से सहमत हो जाए और आपके साथ सिंपैथी भी रखे। ये नहीं कि ऐसा कम्युनिकेशन करें कि सब उग्र हो जाए, आंदोलन कर दे, हड़ताल कर दे, स्ट्राइक पे चले जाएं या कंपनी छोड़ना शुरू कर दे। सो क्लियर, काम, क्लियर मतलब एकदम पूरा स्पष्ट, काम मतलब एकदम शांत शांत। बढ़िया से, हाँ, एंड कंसाइज कम्युनिकेशन, और एकदम संक्षिप्त कम्युनिकेशन कैन हेल्प रिजॉल्व इश्यूज क्विकली। इन सभी चीजों को क्विकली रिजॉल्व कर देगा। सो मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट, लेकिन झूठ वादा नहीं करना है। जो बात कीजिएगा वो सही कीजिएगा। बात टाइम ले लीजिए कि सर आपको, या जो भी मैम है या जो भी एम्प्लॉइज है, कि आपका पेमेंट इतना तारीख को हो जाएगा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ऐसा कुछ बताइए। जो भी प्रॉब्लम है बताइए। ऐसा थोड़ी है वो भी आदमी है, मान जाएगा बात, उसका भी जुड़ाव है कंपनी के साथ। सो मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट एंड गाइड द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू टफ टाइम्स। टफ टाइम्स में ये सब करना होता है। तो टफ टाइम्स में भी कम्युनिकेशन ही काम आता है। आ गया बात समझ में? हर जगह तो कम्युनिकेशन है भाई। अपनी बातों को रखने के लिए, समझाने के लिए, कुछ भी करने के लिए कम्युनिकेशन। आप जो एग्जाम में लिखिएगा, कोई अच्छा नंबर ले आता है और कोई नहीं ला पाता है, वो वहां भी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, है कि नहीं? यस सर। सो यू रीड नाइन्थ, रीड फास्ट। Contribute to organizational culture. Communication plays a fundamental role in shaping the organizational culture. It reflects the values, mission, and vision of the company. Positive communication fosters a healthy work environment, encourage collaboration, and support the company's objectives. So you first of all, you write down, both of you or all of you, all the students, write down one assignment for the next class. Write down the assignment. Your pen and paper is ready, Abhijit? Hello? Yes, sir. Ready. Write down in the next class. So both of you or all of you, that Mishra also, everybody, write down. You need to give a small presentation, very small presentation on, write out the vision. Right, what is vision? Number one, written. Yes, sir. What is mission? You just add this one. What is vision of a company? What is the mission of a company? And what is goal of the company or goals of the company? And what are the values of the company? Note it down. हेलो, Yes, sir. क्या सब लिखा है बताइए? What is the vision of a company? What is the mission of the company? What is the goal of a company? What are the value of a company? So you have noted down, Sunrise? Yes, sir. सो ये आपको अगले क्लास में जब भी हो, कल हो, परसों हो, जब भी हो, ये प्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, मैं किसी से भी कुछ भी पूछ दूंगा और जिससे जो पूछूंगा उसको बताना होगा भाई। Okay, sir. टफ लग रहा है? No, sir. ये तो आपने पढ़ा होगा पहले कहीं, जी सर। या नहीं पढ़ा? नो सर, पता है इसके बारे ये जब आप नेक्स्ट क्लास में बताइएगा तभी इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट है जो हमारा ब्रांड बिल्डिंग एंड मार्केटिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांड? यू सनराइज, जस्ट टेल मी। में। सर ब्रांड मतलब कि लोगो, मतलब
कंपनी का मतलब क्या बताएं, जैसे नागरमल वो एक ब्रांड है उसका, जैसे ड्रीम होता है। तभी आपने लगता है रिसेंटली आपने कुछ खरीदारी किया वहां से रिसेंटली, इसलिए आपको इतना में एक नागरमल याद आया, लोकल नहीं ब्रांड। सर, नहीं सर, वो टाटा का भी होता है ना, एक हम्म। ब्रांड है ना। तो मतलब ब्रांड मीन्स यू आर सेइंग दैट बेसिकली लोगो, राइट? यस सर। नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। मतलब हाँ। मैंने खाली लोगो ना। हाँ सर। ओ, ठीक। अभिजीत, यू टेल मी। सर अभिजीत एक्सप्लेन। सर ब्रांड मतलब सर कोई भी प्रोडक्ट जो गुड क्वालिटी होते हैं उसको शो करना। अच्छा, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट को शो कर देना इज ब्रांड, है ना? नहीं नहीं So नहीं, you नो so सर। you write no you write the assignment for the next class or brand, what is brand? Write down this assignment also. Have you noted down? Both of you, all three of you, यस noted सर। down. What is brand? That also. So external communication, including advertising, public relations, and customer interactions. So directly impacts the company's brand image. कंपनी का एक इमेज होता है, जैसे हर चीज का एक टाटा का एक इमेज है। सही कहा आप लोगों ने कि लोगो तो है, लोगो लोगो सिर्फ एक लोगो है, लोगो से कुछ नहीं होता है। का अपने आप को कैसे आप प्रस्तुत करते हैं, अपने आप को किस प्रकार से आप कैरी करते हैं, आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपका क्या गुण है, ठीक है? सो दैट एवरीथिंग कैरीज, एवरीथिंग इज योर ब्रांड, ब्रांड इमेज। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स, excuse me, effective communication helps businesses reach new customers, maintain a positive public image, and stand out in a competitive market. इतना जो कंपटीशन है उसमें आप सर वॉइस नहीं आ रहा है। अपने आप को आप अलग कैसे पाते हैं, अपने आप को अलग कैसे रखते हैं, आपको अलग जो बनाते हैं अपना जो यूनिक बिजनेस कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिक डिलीवरी एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स achieve business goals. Its importance cannot be overstated because it affects decision making, teamwork, customer relations, and overall organizational success, whether through emails, meetings, or informal chats. Effective communication is vital for building strong relationships and ensuring that both internal and external interactions are productive. So, with this, we are ending today's session. So, how is today's class? सर वेरी गुड सर। ठीक लगा आपको? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्लास